فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید لیلۃ القدر خیر من الف شہر او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بے حد حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک شش جہات کے لیے، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، شفیع امم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم شہ ہر دو سرا محبوب کبریا شافی روز جزا علیہ تحیات و ثنا کے دربار گوہربار میں محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا ارمغان نیاز بصورت درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے خالق کائنات اس حاضری کو زیور قبولیت سے آراستہ فرمائے۔ شب قدر ہے اور جشن نزول قرآن بھی ہے۔ شب قدر کے بارے میں آقا کریم کا فرمان ذیشان ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 345 پہ حدیث طیبہ نمبر 1901 ہے۔ آقا نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا جس نے شب قدر ایمان اور احتساب کی حالت میں بسر کی، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سورہ قدر سے آیت پڑھی ہے اور اس سورت کا شان نزول تفسیر قرطبی جلد نمبر 20 کے صفحہ نمبر 122 پہ لکھا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، وقت کے نبی کو اللہ نے وحی کی کہ اس بادشاہ کو کہو ہم تم پہ راضی ہو گئے، کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ اس نے دعا کی مولا میں جان، مال اور اولاد سے تیری راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے 1000 بیٹے دیے۔ یہ کوئی فیس بک کی کہانی نہیں، تفسیر قرطبی جلد نمبر 20 کے صفحہ نمبر 122 پہ ایک تابعی حضرت کعب احبار کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ 1000 بیٹے اللہ نے دیے، جوان ہو گئے، خود محو عبادت ہوا، ہر مہینے ایک بیٹے کو جہاد پہ بھیج دیتا، بیٹا شہید ہو جاتا، اگلے مہینے دوسرے بیٹے کو، پھر وہ شہید ہو گیا، اگلے مہینے تیسرے بیٹے کو، خود قائم اللیل اور صائم الدہر رہا، رات کو عبادت اور دن کو روزہ رکھتا رہا۔ 1000 مہینوں میں 1000 بیٹے شہید ہو گئے، پھر خود لباس زرہ جنگی لباس پہنا، جہاد میں گیا، خود بھی شہید ہو گیا۔ نبیوں کے تاجدار نے جب یہ بات صحابہ اکرام کو بتائی، صحابہ غمزدہ ہوئے، ہماری نہ اتنی عمر ہے، نہ اتنی اولاد ہے، نہ اتنا مال ہے، وہ تو بڑھ گیا، عمل میں سبقت لے گیا،
मेरे मुस्तफ़ा के कल्ब अत्थर पे सहाबा का ये गम गिरा गुजरा। आका करीम रंजीता खातिर हुए, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, सूरा कद्र ले जाओ और उसमें कहा लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। महबूब हम आपकी उम्मत को शब कद्र देते हैं, आपका कोई उम्मती इस रात में इबादत करेगा, हम उस बादशाह की 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमा देंगे। तो ये वो शब कद्र है। हुक्म मुस्तफ़ा का ये है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 362, हदीस तैयबा नंबर 2017। और जो मैं हवाला पेश करूं वो हवाला राई के दाने जितना भी इधर उधर हो तो मैं बरसरे मिंबर सर कलम करवाने के लिए तैयार हूं। इतनी ऑथेंटिक मैं गुफ्तगू आपके सामने बहवाला कर रहा हूं। सैयदा आयशा सदीका फरमाती है कालत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाती नबियों के ताजदार ने फरमाया तहर्रू लैलतुल कद्र फिल वित्र मिन लैलतुल अवाखिर मिन शहर रमजान। आका ने फरमाया, हजरत आयशा सदीका राविया है इस हदीस पाक की, नबी करीम ने फरमाया लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी हशरे की ताक रातों में तलाश करो। क्या मतलब? 21वें रमजान को, 23वें रमजान की रात को, 25वीं की रात को, 27वीं की रात को और 29वीं की रात को तलाश करो। यह कौल मेरे मुस्तफा का बुखारी शरीफ में है, मगर आज है 27वीं रात। मैं आपके सामने हदीस तैयबा रख रहा हूं, मुस्लिम शरीफ जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 433, हदीस तैयबा नंबर 2777। हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया अय्यु लैलतुल कद्र, शब कद्र कौन सी रात है? आपने कसम उठाई, फरमाया वल्लाही इन्नहा लैलतुल कद्र सबअ व इश्रीना लैला फी शहर रमजान सुम्मा हलाफा। उबई इब्ने काब ने अल्लाह की कसम उठा के कहा कि रमजान की 27वीं रात ही शब कद्र हुआ करती है। एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस में पेश कर रहा हूं, किताब है सुन्ने अबी दाऊद, जल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 206 है, हदीस तैयबा नंबर 1386 है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में आका ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा ऐ मेरे मौला इजअल मुआविया हादिया व महदिया, मौला मेरे मुआविया को हिदायत देने वाला भी बना दे, हिदायत का मरकज भी बना दे। आका करीम ने दुआ की जिनके लिए वो सहाबी रसूल जो कातबे वहय भी हैं, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया लैलतुल कद्र कौन सी रात है? आप बैठे हुए थे जब ये सवाल किया गया। हजरत अमीर मुआविया उठ के खड़े हो गए, रुख खाना काबा की तरफ कर लिया। आपने फरमाया वल्लाही साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैंने यही सवाल कायनात के वाली से किया था कि शब कद्र कौन सी रात है। नबी करीम ने खुद मुझे फरमाया था। एक तो बैठे थे, हदीस बयान करने से पहले उठ के खड़े हो गए, दूसरे नंबर पे रुख कर लिया काबा की तरफ, तीसरे नंबर पे अल्लाह की कसम उठा ली, फरमाया वल्लाही काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा लैलतुल कद्र मिन सबअ व इश्रीना मिन रमजान। आका करीम ने फरमाया था कि लैलतुल कद्र रमजानुल मुअज्जम की 27वीं रात हुआ करती है। यह हुजूर का फरमान है। 2 हदीसें हो गई, मैं तीसरी हदीस तैयबा पेश करने लगा हूं, और ये रावी उस हदीस के वो हैं जिन्हें आका ने फरमाया हिब्रु हाज़िहिल उम्मा, मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा दीन की फहम रखने वाला जो शख्स है उसे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहा जाता। वो रावी है इस हदीस के। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को 2 मरतबा आमिना के लाल ने अपने सीने से लगा के दुआ मांगी। पहली बार हुजूर ने सीने से लगाया, दुआ मांगी,
अल्लाहुम्मा अलहिमु तावील अल कुरान, मौला मेरे इस भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा दे। दूसरी बार आका ने सीने से लगाया, फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, मौला मेरे इस भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को दीन की समझ बूझ अता फरमा दे। अब जिसके लिए हुजूर दुआ करे और उनके इल्म का फिर मुकाम ये है, अल इत्कान फी उलूम अल कुरान किताब है, सफ़ा नंबर 332 है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का कौल है, लौ दाआ कालो बईरी लवजदतहु फी किताबिल्लाहि ताला, अल्लाह की कसम है अगर मेरे ऊंट का घुटना बांधने वाली रस्सी गुम हो जाए मैं उसे अल्लाह के कुरान से तलाश कर लिया करता हूं। कुरान की इतनी फाहम रखने वाला, और यही अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अभी पैदा नहीं हुए थे, हुजूर के सगे चचा हजरत अब्बास के बेटे हैं, हुजूर की सगी चच्ची हजरत उम्मे फजल के बेटे हैं। हुजूर की चच्ची उम्मे फजल गुजर रही थी, आका ने फरमाया चच्ची उम्मे फजल ठहरो, ठहर गई। आका ने फरमाया तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत बेटा अता फरमाएगा। हजरत उम्मे फजल हुजूर की चच्ची कहती हैं, आका मुझ पर तो हमल के आसार ही नहीं, कोई ऐसी कैफियत नहीं है, आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें खूबसूरत बेटा देगा, कोई आसार नहीं है। आका ने फरमाया आसार हो या ना हो, मैंने कह दिया है होके रहेगा। जो नबी कह दे वो होके रहता, मैंने कह दिया चच्ची होके रहेगा। अब मैं यहां किताबुल आदाब से हदीस नहीं पढ़ता, बुखारी शरीफ किताबुल जुम्मा दूसरा हवाला बुखारी शरीफ का। सहाबा कहते हैं कि हमें इस बात पर मुंह के नातुन अन्ना मा काला वाक़िउ, हमारा ये अकीदा है कि नबी की जुबान से जो निकल जाता है अल्लाह उसी बात को पूरा फरमा दिया करता। बल्कि बुखारी शरीफ है, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 490, हदीस तैयबा नंबर 4 है, हदीस तैयबा नंबर 6502 है। नबी पाक ने फरमाया, रब फरमाता है मेरे नबी का नाम जप जप के जो वली बन जाए उसकी जुबान से जो निकल जाए मैं रब उसकी बात को भी पूरा फरमा देता। अब मैं जो अर्ज करने लगा था, चच्ची तुझे मुबारक हो, अल्लाह खूबसूरत बेटा देगा। कहा आका मेरे में आसार नहीं हमल के, कोई ऐसी बात नहीं है। फरमाया जो मैंने कह दिया है होके रहेगा। आका फिर यूं करे कोई निशानी भी दे दे। आपकी चच्ची कहती कोई निशानी दे दे। अब इल्म मुस्तफा सुनिएगा, मैं हवाला देना भूल गया, किताब का नाम है दलाइलुन नबुव्वा, लिखी है मुहद्दिस अबू नाइम ने, सफा नंबर है 222। नबी पाक की चच्ची गुजर रही थी, मुहद्दिस अबू नाइम की किताब है दलाइलुन नबुव्वा, उसमें यह बात ना मौजूद हो मैं सर कलम करवाऊंगा। आका ने फरमाया अल्लाह खूबसूरत बेटा देगा। कहा सारे हमल ही नहीं, फरमाया जो कह दिया है हो जाएगा। कहा आका फिर कोई निशानी दे दे। आका ने फरमाया अल्लाह तुम्हें जो बेटा देगा पेशानी कुशादा होगी, आंखें मोटी होगी, नाक तलवार की नोक की तरह उठी हुई होगी, गालों पे रुखसारों पे सुर्खी होगी, छाती चौड़ी होगी, नीचे का बदन फुर्तीला होगा। और एक और निशानी सुन लो, गर्दन के पीछे धारीदार लंबा तिल होगा। ये अपने नबी का इल्म सुन के भी नहीं बोलते, कमाल हो गया। हुजूर फरमाते इज़ा मित्तु ला अज़ालु उनादी फी कब्री उम्मती उम्मती उम्मती। शवाहिदुल हक किताब है इमाम यूसुफ नबहानी की, मेरी आदत है मैं बगैर हवाले के नहीं चलता। उसमें लिखा है नबी पाक ने फरमाया जब मैं अपनी कब्र में चला जाऊंगा मैं बगैर वक्फे के कहता रहूंगा उम्मती उम्मती उम्मती। जो नबी कब्र में जाके तुझे ना भूला, तू अपनी जिंदगी में नबी के नाम पर सुभान अल्लाह कहना भूल गया, कैसा उम्मती कहो बुलंद आवाज से सुभान। आका ने फरमाया चच्ची निशानी सुन। जी आका फरमाइए। फरमाया पेशानी कुशादा होगी, आंखें मोटी होगी, नाक तलवार की नोक की तरह उठी हुई होगी, गालों पे रुखसार सुर्खी माइल होंगे, सीना चौड़ा होगा, नीचे का बदन फुर्तीला होगा और
गर्दन के पीछे लंबा धारीदार तिल होगा। हजरत उम्मे फजल फरमाती हैं, वक्त गुजरा, अल्लाह ने बेटा दिया, मैंने गौर किया, पहली निशानी मुनी पेशानी कुसादा है, दूसरी निशानी देखी आंखें मोटी हैं, तीसरी निशानी पे गौर किया नाक तलवार की नोक की तरह तेज है, चौथी निशानी पे गौर किया गालों पे सुर्खी है, पांचवी निशानी पे गौर किया सीना चौड़ा है, छठी निशानी पे गौर किया टांगे तेजी से चला रहा है, नीचे का बदल फुर्तीला है। कहने लगी सारी निशानियां मिल गई, मैंने लपक के देखा, गर्दन के पीछे जैसे मुस्तफा ने फरमाया था लंबा धारीदार तिल भी मौजूद है। मजा नहीं आया यार, बुलंद आवाज से। आका ने फरमाया था चच्ची अगर ये पैदा हो जो मैं बता रहा हूं लेके आ जाना मेरी बारगाह में, और अगर ये निशानियां न मिले तो कह देना मोहम्मद ने ऐसे ही कहा था। निशानियां मिल गई, हजरत उम्मे फजल ने उठाया हुजूर की चच्ची ने, हुजूर की बारगाह में लेके हाजिर हो गई। आका वही निशानियां है, आका करीम ने गोद में लिया, लुआबे दहन हाथ से उंगली से निकाला, वो लुआब जो मेरे मुस्तफा ने मौला अली को दिया, वो लुआब जो कमली वाले ने सैयदा जहरा को दिया, वो लुआब मुस्तफा जो कायनात के वाली ने इमाम हसन को दिया, वो लुआब मुस्तफा जो कायनात के मुख्तार ने इमाम हुसैन को दिया, आका ने वो लुआब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को अता किया। उम्मे फजल लेके हुजूर की चच्ची जाने लगी, चंद कदम चली वापस मुड़ी, आका कुछ और भी अता कीजिए। आका ने फरमाए इज़हबी बिअबिल खुलफा, चच्ची ले जा बादशाहों के बाप को ले जा, बादशाहों के बाप को ले जा। जाके हजरत अब्बास को बताया कि आका ने ये जो निशानियां बताई थी सारी है, और हुजूर ने फरमाया ले जा बादशाहों के बाप को। हजरत अब्बास हाजिर हुए, आका आपने क्या नवाजा मेरे बेटे को? फरमाया कि बादशाहों का बाप होगा। तारीख इस्लाम उठा लें, 650 साल तक लगातार हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की औलाद ने जमाने पे हुकूमत की है। आका का ये फरमाना बताता है कमली वाला लोगों के शिकम के हालात भी जानता है, 650 साल बाद आने वाले हालात से भी वाकिफ हुआ करता है। रावी हदीस तैयबा के यही सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है, और किताब है सैयदुल असियात, फर्दुल अफराद, दाफिउल फसाद, मरजाउल औताद, शाह जिलानी, कुतुब रब्बानी, फैज़ रसानी, किंदील नूरानी, शाहबाज़ मकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, 11वीं वाले पीर ने यह हदीस लिखी है। यह हदीस 11वीं वाले पीर ने लिखी है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फारूक का दौर है। हजरत उमर फारूक ने बुलाया हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को, कहते मैं हाजिर हुआ, मैंने देखा सहाबा जमा है, जब सहाबा जमा थे मैं भी हाजिर हो गया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने सहाबा से पूछा अय्यो लैलतुल कद्र, बताओ सहाबा शब कदर कौन सी रात हुआ करती है? काला बादुहुम इहदा व इशरीना लैला, किसी ने कहा 21वीं की रात, वह काला बादुहुम सलासिम व इशरीना, किसी ने कहा 23वीं की रात, वह काला बादुहुम खामिसिम व इशरीना, किसी ने कहा 25वीं की रात। कहते मैं सर झुका के बैठा था। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं जनाब उमर फारूक ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने, मालक या इब्ने अब्बास, इब्ने अब्बास तुझे क्या बात है, क्यों चुप बैठा है? मैंने कहा जी आपने कहा बड़ों में ना बोला कर, कहा मैंने आज तुझे बुलाया यही मसला हल करने के लिए है, तू बता शब कदर कौन सी रात है? अब इल्म देखिएगा, इल्म अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का, और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का कौल ही है, मैंने जुमे पे सुनाया था, इल्म रसूलुल्लाह मिन इल्मिल्लाह ताला व इल्मु अली मिन इल्म रसूलिल्लाह व इल्मी मिन इल्म अली। नबी का इल्म जो है वो अल्लाह के इल्म की खैरात है,
वली का इल्म जो है वो रसूल के इल्म की खैरात है, और मुझ इब्ने अब्बास का जो इल्म है वो मौला अली के इल्म की खैरात है। अब मौला अली के इल्म की खैरात का बोलना सुनिएगा। जब पूछा सैयदना उमर फारूक ने, अय्यो लैलतुल कद्र, कौन सी रात है शब कदर की, सबने व्यूज दिए। किसी ने कहा 21वीं की रात, किसी ने कहा 23वीं की रात, किसी ने कहा 25वीं की रात। फरमाया मालक या इब्न अब्बास, इब्न अब्बास तुम नहीं बोलते, तुम बताओ कौन सी रात है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते कुल, तो मैंने कहा इन्नल्लाह वित्रुम व युहिब्बुल वित्रा, अल्लाह खुद भी वित्र है, खुद भी ताक है, और ताक को पसंद करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैंने नबी पाक का कौल पढ़ा कि आका ने फरमाया इन्नल्लाह वित्र, अल्लाह ताक है, वह युहिब्बुल वित्र, और ताक को पसंद करता है। ताक किसे कहते हैं? जो दो पे तकसीम ना हो, एक जुफ्त होता है, एक ताक होता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फरमाते हैं, इब्न अब्बास समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हो। कहा मैंने कहा कि अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है, और ताक में जिस अदद को अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करता है उसे सात कहते हैं। यह हजरत इब्न अब्बास का कौल है। मैंने कहा उसे सात कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर ने फरमाया कोई दलील दे कि अल्लाह ताक अददों में सात को पसंद करता है। कहते मैंने कहा सुनिए दलील, अल्लाह ने आसमान बनाने की बारी आई तो आसमान बनाए सात, जमीन बनाने की बारी आई अल्लाह ने जमीनें बनाई सात, सूरह फातिहा की आयत नाज़िल करने की बारी आई, सूरह फातिहा की आयतें नाज़िल की सात, अल्लाह ने हामीम से शुरू होने वाली सूरतें नाज़िल की, उनकी तादाद है सात, तवाफ़े काबा के अल्लाह ने चक्कर लगवाए, उनकी तादाद है सात, सफा से मरवा तक साज के चक्कर लगवाए, उनकी तादाद है सात, अल्लाह ने जहन्नुम के दरवाजे बनाए, उनकी तादाद है सात, अल्लाह ने जहन्नुम के दरके बनाए, उनकी तादाद है सात, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह पर जो ख्वाब में गाय दिखाई उनकी तादाद है सात, अल्लाह ने जो बालियां दिखाई उनकी तादाद है सात। हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं अभी मुतमईन नहीं हुआ, और बात बताना क्या चाहता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैंने कहा आज़ाए सजदा जो सजदा करते जमीन पे लगते हैं उनकी तादाद है सात। कहने लगे और आगे बोल। जनाब अमीरुल मोमिनीन कहने लगे इब्न अब्बास और बता क्या बताना चाहता है। कहते मैंने कहा सुनिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन नस्बी औरतों से निकाह हराम किया उनकी तादाद है सात। कहने लगे पढ़ के बता। मैंने पढ़ा हुम हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती। कितनी हुई? कहने लगे सात। मैंने कहा अल्लाह ने नस्ब की औरतें जिनसे निकाह हराम है उन्हें भी सात बनाया। कहने लगे और बता। मैंने कहा सुने इंसान का मजमूआ ग़िज़ा का जो जमीन से आता है वो भी अल्लाह ने साथ बनाया। कहने लगे पढ़ के सुना। मैंने कहा सुम्मा शक़क़ना अल-अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबा व कदबा व ज़ैतून व नख़ला व हदाइक़ा गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा। कहने लगे इब्न अब्बास तू तो बाजी ले गया, तूने बात समझा दी कि अल्लाह सात को पसंद करता है। मैंने कहा ठहर जाइए अमीरुल मोमिनीन रुकिए, अभी बात और भी बाकी है। कहने लगे बता। मैंने कहा ये बताए कि सूरह कदर में लैलतुल कदर जो है, लैलतुल कदर का लफ्ज है उसके कितने हर्फ हैं? कहने लगे तू खुद बता। मैंने कहा लैलतुल कदर जो लफ्ज है उसके हर्फ है 9। लाम या लाम ता अलिफ लाम काफ दाल रा 9 है। कहा फिर? मैंने कहा ये लैलतुल कदर लफ्ज जो है ये सूरत में कितनी बार आया है? कहने लगे गिन के बता। मैंने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर व मा अदराका मा लैलतुल कदर लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर 3 बार आया। मैंने कहा आया 3 बार है, हर्फ हर लफ्ज लैलतुल कद्र के 9 है। 9 को 3 से ज़रब दो क्या बनता है? हजरत उमर फारूक ने कहा ये तो 27 बनता है। मैंने कहा 27वीं ही शब कद्र है। कहने लगे भी कमाल कर दिया। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी बात एक और दलील रहती है। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा जी सूरह लैलतुल कद्र पढ़े, सूरह कद्र पढ़े। कहने लगे तू खुद पढ़ के बता। मैंने कहा जी आप गिनते जाएं। कुल लफ्ज है सूरह लैलतुल कद्र के 30 लफ्ज हैं, 30 कुल। लेकर आप इनको गिनते जाएं। इन्ना आप कहेंगे एक, इन्ना
आप गिनते जाएंगे, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वाओ मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहरिन तनज़्ज़लु अल मलाइकतु वाओ अर्रूहु फी हा बेइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमरिन सलाम। सलाम पे आगे 26 लफ्ज, सलाम पे आगे। कहा आगे क्या है? कहा आगे है हिजा। हिजा है जमीर, इशारा, इसमें इशारा है हिजा, इसमें इशारा, ये इशारा, इसका मतलब है वो रात। हिजा का माना है वो रात। कहा ये इशारा किसकी तरफ हो रहा है? अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर ने कहा ऐसे मुराद तो लैलतुल क़द्र है। फरमाया जो लफ्ज़ इशारा हिजा आया है वो 27वें नंबर पे है। अल्लाह बताना चाहता है कि शब-ए क़द्र जो मुस्तफा को उम्मत को अता की है वो 27वीं रमजान की रात ही हुआ करती है। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मैंने बाहवाला बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, इब्न दाऊद, अबी दाऊद से, और मैंने अल-इत्क़ान से, और मैंने दलाइलुन नबुव्वा, इन किताबों से साबित किया कि शब-ए क़द्र जो रात होती है वो 27वीं की रात ही हुआ करती है। क्या सनई आई? ऊंची आवाज ना खो जाए। कितनी खुशकिस्मती है कि आज वो रात है जो 27वीं की है, जिसे हजरत अमीर माविया ने कहा कि शब कद्र है, जिसे हजरत उबई इब्ने काब ने कहा कि शब कद्र है, जिसे आमिना के लाल ने कहा कि शब कद्र है, जिसे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा कि 27वीं ही शब कद्र हुआ करती है।